ممبران جو پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے امارات کتنے ہیں، ایک ممبر قومی اسمبلی پر ہم اتنے اخراجات کرتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ سیشن پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اور اس پارلیمنٹ میں ہماری عوامی مفاد کے لیے کیا رکھا ہے، آپ لوگ خود اس کا جج بنے اور خود ہی احتساب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشفاق بنگش۔ آج بہت اہم معلومات آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کیونکہ وہ عام شہری کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جو اپنے ووٹ دیتے ہیں، اپنے ممبران جو پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اور اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے امارات کتنے ہیں، اور ٹوٹل ایئر پارلیمنٹ کا کتنا بجٹ ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سالوں کے جو پارلیمانی سالز ہوتے ہیں، جو موجودہ تحریک انصاف حکومت ہے، اس کے حوالے سے ہم پورا ڈیٹیل دیں گے کہ ان 3 سالوں میں پارلیمنٹ میں کیا کارکردگی رہی ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا مشابہت رکھیں گے گزشتہ دور حکومت کی کہ ان کا 3 سالوں میں کیا پوزیشن اس میں رہا ہے۔ تو ناظرین، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب جو عام شہری ہے وہ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کی بنیادی مقاصد وہ 3 بنیادی مقاصد ہے، جو عوام کی نمائندگی، عوام کی مسائل، ان کے مفاد کا خیال رکھنا اور ان کی مفاد کے لیے قانون سازی کرنا۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف حکومت کی 4تھے پارلیمانی سال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر پارلیمانی سال جو ہے وہ 14 اگست سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو 14 اگست سے یہ 4تھا پارلیمانی سال ہے جو تحریک انصاف کا شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، پہلے آ جاتے ہیں کہ جس طرح یہ 4تھا پارلیمانی سال جو شروع ہوا وہ بھی حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے 17 دسمبر سے جو اجلاس شروع ہوا تھا وہ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے۔ کورم کیا ہوتا ہے؟ کورم یہ ہوتا ہے کہ جو ممبرز ہیں ان کی تعداد کے حساب سے اگر وہ برابر نہ ہو تو اپوزیشن نشاندہی کرتے ہیں، پھر وہ کورم یا وہ اجلاس جاری نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے حکومتی بندے جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں، تو حکومت یا بندے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، تو کورم پورا نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ 17 ستمبر، 20 ستمبر، 21 ستمبر، 22 ستمبر، 24 ستمبر اور پھر 27 ستمبر کو قومی اسمبلی اجلاس جو ہے اس وجہ سے ملتوی کیا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قومی اسمبلی جو پارلیمانی سال ہوتا ہے اس میں 130 دن مکمل کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ وہ آئین کی آرٹیکل 54(1) کے لازمی تقاضا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہر 14 اگست کو پارلیمانی سال مکمل ہوتا ہے، پھر اس کی رپورٹ بھی جاری ہوتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی 3ری پارلیمانی سال کے دوران قومی اسمبلی کی اجلاس جو ہے وہ 79 دن جاری رہا۔ تو اس کے بعد 49 موقعوں پر ایسا ہوا کہ کورم کی نشاندہی ہوئی کہ کورم پورا نہیں ہے، جبکہ 31 بار اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا۔ اب آ جاتے ہیں 3ری پارلیمانی سال میں 60 بلز جو ہے وہ پاس کیے، اور اس 60 بلوں میں قانون سازی میں ان میں 25% FATF جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس اور IMF سے متعلق تھے۔ تو یہ جو ہے وہ بہت ضروری تھے کہ یہ آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ اس کنڈیشن میں 60 بل پاس کیے ہیں، اس میں بھی عوام کا کتنا مفاد رکھا گیا۔ اس میں 56% ایجنڈا جو ہے وہ زیر غور بھی نہیں آیا جو اس سال کے تھے۔ 3 سالوں میں 100 بلز گزشتہ حکومت کے 3 سالوں میں 69 بل پاس کیے، اس کی گزشتہ حکومت کے کم رہے۔ موجودہ حکومت نے 58 آرڈیننس جاری کیے، 58 آرڈیننس جو صدارتی حکومت نامہ ہوتا ہے، جو کہ پچھلی گزشتہ دور حکومت میں صرف 3 سالوں میں جو نواز شریف گورنمنٹ تھی اس میں 29 آرڈیننس جاری ہوئے تھے۔ تو اس حکومت کی 58 جو آرڈیننس ہے اس میں متنازع آرڈیننس بھی رہے ہیں۔ اس میں ایک آرڈیننس نیب کے حوالے سے بھی تھا، اس کو بھی متنازع، اور اس طرح انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں۔ تو آرڈیننس جو جاری ہوتے ہیں وہ تو ایک
इमरजेंसी सूरत में होता है, लेकिन हुकूमत चूँकि अपोजिशन है वो बिल नहीं पास कर सकती, तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से अपना काम चला रहे हैं। तो ये इसके हवाले से अगर आपको बताता चलूँ कि पिलडेट ये जो अहम इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत मुतबर इदारा है, उन्होंने जो रिपोर्ट मुख्तस किया उसके हवाले से भी आप बताएं कि वो इस तरह की सेम आ रहे हैं। वो आप उसके फिगर भी आप अगर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है। अगर मौजूदा हुकूमत के 3 साल ले लें तो हर पार्लिमानी साल के मजमूई जो दिन हैं वो 88 बनते हैं, और इसी तरह पिछली गवर्नमेंट के 3 सालों में 99 बनते हैं। फिर इसमें अगर आप देखें कि वर्किंग जो घंटे हैं वो कितने बनते हैं, तो मौजूदा हुकूमत के बनते हैं तकरीबन 217 घंटे 6 मिनट, और पिछली हुकूमत के जो 3 सालों की कारकर्दगी है वो 312 घंटे 5 मिनट बनते हैं। इसमें नज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि इंडिया के अगर आप देखें, भारत की अगर आप देखें, तो वो पार्लिमानी साल के और जो उनकी सेशन के घंटे होते हैं वो 6 से 7 घंटे टाइम देते हैं। 6 से 7 एक आम मजदूर बंदा भी उसको दाढ़ी नहीं मिलते जब 8 घंटे वो न लगाएं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं जो इस तरह की सूरत हाल आप देखते हैं, हमारे मुश्किल से 2 घंटे हर सेशन या इजलास बनता है। तो इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि सबसे कम जो इजलास कितने मिनट का रहा है वो भी आप हैरान रह जाएंगे। उसके खर्चात आप देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये तो सूरत हाल रही है हमारे घंटों के हिसाब से। फिर इसमें हाज़िरी जो है, हाज़िरी अगर आप देखें तो एमएनएस की हाज़िरी बहुत ज़्यादा है पिछली हुकूमत से, क्योंकि हाज़िरी के लिहाज से अगर पहले हम आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म की हाज़िरी, तो वज़ीर-ए-आज़म की हाज़िरी पिछली हुकूमत से कम रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाज़िरी टोटल रही है 3 सालों में 12%, और साबिक दौर जो नून लीग का था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था उस वक्त, तो उसकी 16% हाज़िरी रही है। इस तरह अगर अपोजिशन लीडर को देखें तो इस मौजूदा हुकूमत में, तहरीक इंसाफ हुकूमत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है, तो शहबाज शरीफ की सबसे कम जो है वो रही है, वो 24% उनके एवरेज रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस दौरान चूँकि नेब केसेस में जेलों में थे, फिर नेब केसेस वो कर रहे थे, उसके साथ साथ वो कमर के वजह से बीमार भी रहे हैं, तो इस वजह से इसकी हाज़िरी कम पड़ रही है। दूसरी तरफ जब नून लीग की हुकूमत थी, तीसरी हुकूमत में उस वक्त अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी रहनुमा थे, उनकी हाज़िरी सबसे ज़्यादा है, उसको 75% उसकी अटेंडेंस या हाज़िरी रही है, वो मौजूद रहा है। अपोजिशन लीडर का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह बजट के सेशन में आप लोगों ने देखा कि बजट सेशन भी 17-16 दिन रहे हैं, और इस पर कितना टाइम और वक्त लगा है। बहरहाल इसमें अगर हम आ जाते हैं कि सबसे कम इजलास 10 मिनट रिकॉर्ड हुआ है 19 जुलाई 2021 को, सिर्फ 10 मिनट इजलास हुआ है, और उसमें TADA और उसका अखराजात सेम लिया है। वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि कितना TADA एक एमएनएस का होता है और उस पर एक सेशन पे कितना खर्चा होता है। 10 मिनट रहा है, तो ये अवाम के साथ ज़्यादती नहीं तो और क्या है। तो इसके साथ आ जाते हैं आगे कि अहम इजलास जो हुए हैं। अहम इजलास, एक तो आप लोगों ने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेमाद का वोट लिया था, उसके लिए खुसूसी इजलास बुलाया गया था। दूसरा जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया, उसमें 33 बिल हुकूमत ने एकदम से पास किए, उसमें ऑर्डिनेंस की भी पास किए। तो उसमें मुतनाज़ा जो रहे हैं बिल वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझने के। एक तो कुलभूषण यादव जो भारतीय जासूस था, उसके हवाले से आलमी अदालती इंसाफ ने जो नज़रसानी के हवाले से या अपील के हवाले से उसका प्रेशर था, तो उसके हवाले से वो बिल पास किया। दूसरा जो था वो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने की बिल था। और तीसरा जो अहम था वो जो अपोजिशन अभी तक उस पर एहतजाज कर रही है और अदालतों का कह रही है, लेकिन अभी तक अदालत नहीं गई, वो इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से, ताकि वो उन्होंने हुकूमत ने पास किया और जो बाहर ममालिक में पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको वोट हक भी उसमें शामिल है। तो ये 3 जो मुतनाज़ा है, क्योंकि अभी तक उस पर बात
चल रही है। तो अब आ जाते हैं नाजरीन उस तरफ जो मैं आपको बता रहा था कि ये तो रही कर देगी, और जिस तरह मैंने बताया कि 10 मिनट का सेशन भी चला है और उस पर ख़र्च कितना हुआ है, हर मेंबर ने अपना TADA बाकायदा लिया है। तो आप देखें कि अभी उस तरफ वो इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में पार्लियामेंट के 3 सालों में जो कारकर्दगी रही है पार्लिमानी साल में, तो पहले साल में पार्लिमानी साल में 4155 मिलियन, तो इसका तकरीबन बनता है 4 अरब 16 करोड़ रुपए टोटल खर्च। और दूसरी जो पार्लिमानी ईयर है उसमें खर्च बढ़ गया है, उसमें 4605 मिलियन, तो इसका बनता है 4 अरब 61 करोड़ रुपए। तो इसमें नाज़रीन तकरीबन 45 करोड़ रुपए इजाफा हुआ है। अब जो तीसरा पार्लिमानी साल गुजरा है उसमें खर्च मज़ीद बढ़ गया है, उसमें हुआ है 5409 मिलियन, तो इसका बनता है 5 अरब 41 करोड़। तो तकरीबन इसमें 80 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, आप लोगों को शायद बहुत कम इल्म हो कि एक मेंबर कौमी असम्बली पर औसतन कितना खर्च आया। तो ये बनते हैं तकरीबन पहले साल में 1 करोड़ 21 लाख से ज़ायद है, और दूसरी में तकरीबन 1 करोड़ 34 करोड़ 60 हज़ार तकरीबन बनता है, ये बढ़ गया है। फिर तीसरे में आ जाता है 1 करोड़ 58 लाख तकरीबन बनता है। तो ये एक मेंबर पे सालाना जो खर्च आता है, इसमें इसकी सैलरी में इंक्लूड करता हूँ। आपको सैलरी का उसका पैटर्न भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसकी सैलरी का पैटर्न क्या है। एक मेंबर कौमी असम्बली 1.5 लाख तनख्वाह उसकी होती है, और ऑफिस मेंटेनेंस के लिए 8000 रुपये, और टेलीफोन अलाउंस के लिए 10,000 रुपये, इजाफी अलाउंस जो होता है वो 5000, एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो उसमें उनको दिया गया था उसमें 15,000 रुपये इजाफा हुआ है। फिर इसके साथ साथ अगर कमेटी चेयरमैन हो, अक्सर जो है वो कमेटी या किसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, तो उसको फिर 25,000 इजाफा मिलते हैं, तो ये तकरीबन बनते हैं 2,13,000 रुपये। तो यहाँ पे फिर बात ख़त्म नहीं होती नाजरीन, इन जो मेंबर्स कौमी असम्बली है इसकी मज़ीद भी जो है इसको मरात है। मज़ीद किस चीज़ में मरात है? जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो इजलास अटेंड करते हैं इसका भी इनको TADA मिलता है। तो इसमें अगर आप देखें कि TADA अलाउंस में तकरीबन वो भी हज़ारों की तादाद में बन जाते हैं, तकरीबन उसमें 4,801 अलाउंस है, इस तरह फिर 2,000 दूसरा अलाउंस है, तीसरा तकरीबन ये बन जाते हैं 15, एक जो आ जाता है TADA 15। फिर इसके साथ यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती, इसका जो ट्रेवलिंग अलाउंस है उसमें एयर टिकट भी मिलता है। अगर कराची से आता है, लाहौर से आता है या पेशावर से एयर टिकट आया उसने पेश किया तो उसका भी अलग ख़र्चा उसको मिल जाता है कि उसके कितना है। फिर यहाँ भी बात नहीं रुकती कि 1 महीने की बात ख़त्म हो गई, फिर उनको सालाना जो है 25 बिज़नेस क्लास टिकट PIA की भी मिल जाते हैं कि वो 25 जो टिकट मिल जाते हैं वो चाहे वो बेच देते हैं या उसमें सफ़र करते हैं, लेकिन उसको 25 बिज़नेस टिकट क्लास भी फ्री है 1 साल में। तो ये टोटल अखराजात अगर 1 महीने का आप लोग खुद अंदाज़ा करें, कैलकुलेट कर लें, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि एक मेंबर कौमी असम्बली पर हम इतने अखराजात करते हैं, और फिर पार्लियामेंट सेशन पे कितना खर्च होता है, और उस पार्लियामेंट में हमारी अवामी मफाद के लिए क्या रखा है। आप लोग खुद उसका जज बने और ख़ुद ही एहतसाब करें। हम किसी की तनकीद नहीं करते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था, हमने पूरा डेटा निकाला, आप लोगों के सामने रखा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।